Bismillahirrahmanirrahim. Today we will start a new topic, challenges and issues. This is the lecture number 7. Lecture number 7. So let us start with the objectives of this topic. The first objective is illustrate the effect of supply and demand on various energy resources on technical and economic growth. The effects of supply and demand of various energy resources, okay, on technical and economic growth. So what are the energy resources? Different non-renewable energy resources, and other one is renewable energy resources. The first is effect of supply and demand of various energy resources on technical and economical growth. The second is relate the effects of various energy resources. Another in various energy resources. What are the various energy resources? Same thing. On environment. So effect of various energy resources on environment. These are the two basic objectives. So let us start. For categories of energy resources, we have already discussed what are the categories of energy resources. No need to discuss it again and again. Another renewable and non-renewable. Okay, let us see. This is the non-renewable energy resources: oil, natural gas, coal, and nuclear. And what are the renewable and or alternate energy resources? Solar, wind, hydro, biomass, biofuels, and geothermal. So move to the next slide. So we will start from the fossil fuel non-renewable resources. Fossil fuels, which is the coal, gas, petroleum, oil, etc. Non-fossil fuel, non-renewable energy. Supply challenges and environmental. We will discuss two things. One is the supply challenges and the other is the environmental effects of. What are the environmental effects of coal, gas, and main is the CO2 emission. Okay, let us move to the first supply challenges. First we will discuss the supply challenges of non-renewable sources. Supply challenges of non-renewable energy resources. What are supply challenges? Supply challenges depends upon the location specificity, unequal distribution reserves, depends upon the location specificity, exhaustible, volatile pricing, resource extraction, transportation scenario, what are the and stringent environmental policies, and competitive market and supply reliability. We will discuss these things one by one in the next slides. What are the, for example, quick review, what are the location specificity? All the non-renewable energy resources for oil, coal, gas are laid on specific or existed on the specific location. For example, most of the oil reserves and gas reserves are in Middle East and Russia. इसी तरह से एग्जॉस्टेबल के इनकी लिमिट है मिलियन ऑफ ईयर्स. रेट ऑफ इकोनॉमिकल रेट ऑफ ग्रोथ या रेट ऑफ कंजम्पशन इज़ हायर देन द रेट ऑफ growth. Volatile pricing depends upon the situations, political situations, demand and supply, etc. Resource extraction की efficiency क्या हो सकती है, किस पे डिपेंड करती है. ट्रांसपोर्टेशन सिनेरियो क्या हो सकता है इस केस में, कौन कौन से हैं. फॉर एग्जांपल रेल, शिप्स, पाइपलाइन, एटसेट्रा. देन द इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़. अभी आपने सुना होगा पेरिस में जो था ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट, एंड यूएसए जो है उससे पुल आउट हो गया था. वो क्या था, कॉम्पिटिटिव मार्केट्स किए हैं जहाँ पे कंपटीशन होगी तो प्राइस ज़ाहिर है वो लो डाउन होगी.
एंड द सप्लाई रिलायबिलिटी, इसके ऊपर हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेट अस स्टार्ट द लोकेशन स्पेसिफिक रिसोर्सेज। लोकेशन स्पेसिफिक रिसोर्सेज क्या है? जब ये रिसोर्सेज फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में आप देखें तो आपसे अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि वेयर आर द नेचुरल गैस रिसोर्सेज इन पाकिस्तान, ऑयल और कोल। कोल का हम कह सकते हैं कि थर इज़ द बिगेस्ट रिसोर्सेज थे। देन ऑयल को हम कहते हैं कि ऑयल या पेट्रोलियम है, हम अटक का एरिया है जो है उसमें ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, अटक। एंड NDF में लकी मरवत, और ये इस करक वरक एरिए में करक हो गया, करक, वहाँ पे आपको ऑयल रिसोर्सेज मिलेंगे। इसका बस बिगेस्ट ऑयल रिसोर्सेज पाकिस्तान में जो है वो बदीन, बदीन जो है वो सिंध में आपको मिलेंगे स्पेसिफिक जगह पे, ठीक है, बदीन। एंड देन सो ऑन, आपको ना वो स्पेसिफिक जगह से थर कोल है, इस तरह से नेचुरल गैस में बलूचिस्तान आ जाता है थर्ड गैस। अब गैस में जो है इसमें जो ज़्यादा गैस की पैदावार हो रही है वो सिंध फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड पे बलूचिस्तान, एंड थर्ड पे होगी KPK, और इस तरह से सो ऑन एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक जगहों पे इनकी लोकेशन है। इसके लिए फिर आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी चाहिए होगी, सब कुछ ये दिस आर द थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल 2/3 ऑफ द नॉन पेट्रोलियम रिजर्व्स इन मिडल ईस्ट एंड देन रशिया, and the volatile region है, wars, political instability etc, no compatible with stable supply, we need stable supply चाहिए। then comes the natural gas also localized in middle east and Russia, यूरोप को सप्लाई जो है सारी की सारी रशिया से हो रही है। and the coal distributed more evenly but still location specific, कोल तीनों के जिक्र हो गया है, पेट्रोल, ऑयल, गैस एंड कोल, तीनों का जिक्र हो रहा है, ठीक है। तो फाइनाइट फॉर एग्जांपल लोकेशन स्पेसिफिसिटी, रिलायबिलिटी के तो बाद में आप बात करेंगे। एग्जॉस्टेबल नेचर, एग्जॉस्टेबल नेचर का सिंपल ये है कि आपकी जो है वो कितना प्रोड्यूस हो रहा है और कितना यूज़ हो रहा है। अगर ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ठीक है, प्रोड्यूस कम हो रहा है तो सर डिमांड आपकी ज़्यादा है, सप्लाई कम है तो ऑयल आपका प्राइसेस आपकी बढ़ जाएंगी। और वैसे भी आपका इसका मतलब रेट ऑफ कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा है, रेट ऑफ कंजम्पशन कंजम्पशन इज़ ग्रेटर देन रेट ऑफ प्रोडक्शन। रेट ऑफ प्रोडक्शन आप कह सकते हैं रेट ऑफ। पर डिफरेंट स्टडीज़ बताती हैं कि विद इन जो है ना 2 to 3 डेकेड्स जो है ना ये ऑयल जो है ना काफ़ी इसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो ये दीज आर द डिफरेंट थिंग्स। लेट अस सी कि फाइनाइट अमाउंट ऑफ फॉर्म ओवर मिलियंस बिलियंस ऑफ ईयर्स। नेक्स्ट, alarming consumption rates are higher than the production, you can say कि कितने मिलियन, ये डेटा है 85 मिलियन बैरल पर डे, ये आज से 2 साल का है, अब चेंज हो गया होगा काफ़ी, अब शायद 90 मिलियन है या क्या है वो, चेंज डिपेंड्स। नेक्स्ट इज़ द कंक्लूजन क्या, पेट्रोलियम में लॉस ओनली फ्यू डेकेड्स एट और प्रेजेंट रेट ऑफ कंजम्पशन। तो ये है कि ये थर्ड पॉइंट था। एग्जैक्टली चैलेंजेस के क्या थे, उस चैलेंजेस में से एक इशू ये भी है, चैलेंजेस एंड इशू। वोलेटाइल प्राइसिंग, देखें इसकी प्राइस किस पे डिपेंड करती है। ये अगर आप प्राइस लिख लेते हैं ईयर वाइज या मंथ वाइज, प्राइसिंग पाकिस्तान में के अंदर प्राइस नहीं सॉरी यहाँ पे आप टाइम लिख लेते हैं कि टाइम क्या है, टाइम एंड यहाँ पे आपकी प्राइस। तो आपको ग्राफ इस तरह ऑयल वगैरह का इस तरह नज़र आएगा ऊपर नीचे, यानी कि क्या ऑयल है, गैस है, किस महीने में, ईयर्स में, ईयर हो सकता है कहाँ पे ऊपर है जा रहा है, कहाँ पे नीचे जा रहा है। जिस तरह इस साल जो है लोएस्ट प्राइस इन द हिस्ट्री ऑफ दिस ईयर इन कोरोना में हम देखा होगा, लोएस्ट प्राइस इन द हिस्ट्री, लोएस्ट प्राइस ऑयल प्राइसेस इन हिस्ट्री, यानी जिसके बारे में ये कहा जाता है कि जब फॉर द फर्स्ट टाइम वो ऑयल जो है वो प्रोड्यूस हुआ होगा, ये दुनिया में निकला होगा, उस वक्त इतनी कम प्राइसिंग थी जब इतनी है। तो इसलिए ये डिपेंड करता है कि ऑयल वोलेटाइल प्राइसिंग सबसे ऑयल कम किस पे डिपेंड करता है, पॉलिटिकल सिचुएशन है,
हैवी डिपेंडेंसी ऑन पॉलिटिकल सिनेरियो, इस पर काफ़ी लंबी बहस की जा सकती है, डिस्कशन हो सकती है कि क्या क्या सिचुएशन है, पूरा घंटा गुजर सकता है इस पर आप डिस्कस करें तो। रीसेंट अटैक्स इन आराम को, उससे भी 50% जो है वो ऑयल सप्लाई जो है वो डिस्टर्ब हुई थी, सऊदी अरब की ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो गई थी, एस्टिमेट ऑयल प्राइस इंक्रीज 10 इंक्रीज हो गई $10 पर बैरल। ऑयल प्राइसेस रोज़ एक्सपोनेंशियली ड्यूरिंग यूएसए इंगेजमेंट इन अफगानिस्तान इराक वार्स, एक ये भी है, देखें इसके पीछे भी क्या पॉलिटिकल रीज़न होते हैं, क्या ये हमारी सोच जो है उस तक नहीं पहुंच सकती। अनसर्टेनिटी ऑफ सिचुएशन एंड इंक्रीज इन डिमांड्स रिजल्ट इन प्राइस इंक्रीज, ठीक है, प्राइस इंक्रीज, अनसर्टेनिटी ऑफ सिचुएशन, क्या सिचुएशन मिडिल ईस्ट की क्या है, ठीक है, जिसके ऊपर प्राइस जो है अप डाउन होती है, जहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही होती है। तो नेक्स्ट इज़ अ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन। अब रिसोर्स जिस तरह पहले पता कि स्पेसिफिक लोकेशन पे होती हैं, और इन द स्पेसिफिक लोकेशन, फर्स्ट पॉइंट ही था स्पेसिफिक लोकेशन, तो उस लोकेशन की कंडीशन पे डिपेंड, जियोलॉजिकल कंडीशन पे डिपेंड कर सकता है कि क्या है इसका रिसोर्स एक्सट्रैक्शन क्या है, ठीक है, जियोलॉजिकल कंडीशन क्या है, जियोलॉजिकल कंडीशन क्या है, कंडीशन, ठीक है, और टेक्नोलॉजी कैसी है, टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी हैज़ एवॉल्व्ड, टेक्नोलॉजी और डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं रिसोर्स एक्सट्रैक्शन की, एफिशिएंसी को किस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब जियोलॉजिकल लोकेशन में कंडीशन है, तो फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि अगर सेम ऑयल प्राइस जो है आप जो है ना वो अगर डिगिंग ऑयल ड्रिल अगर सऊदी अरब में करेंगे तो उसकी कास्ट कम है, उस कनाडा में करेंगे तो कास्ट ज़्यादा है, क्यों है ये आपसे Q&A में पूछ सकता हूँ मैं। टेक्नोलॉजी पे किस तरह डिपेंड करता है, एफिशिएंसीज़ किस तरह इंक्रीज़ कर सकती हैं रिसोर्स एक्सट्रैक्शन की, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं। लेट अस स्टार्ट। एक्सट्रैक्शन एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट सर्टन फ्यूल टाइप, देयर आर डिफरेंट फ्यूल टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल कोल है, कोल के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल हैं, 1 2 3 एंड 4, इनकी एनर्जी लेवल्स डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं। एंथ्रासाइट है और सबसे आगे लेग्नाइट है, तो ये आपका हाई एनर्जी कंटेंट, सबसे हाई एनर्जी कंटेंट इसमें होगा एंथ्रासाइट में, और सबसे लोएस्ट एनर्जी कंटेंट लेग्नाइट में। अगर डिफरेंट, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल है, डिपेंड करता है कि आपने, तो इससे ज़ाहिर है कि आप जब एंथ्रासाइड हायर फ्यूल कंटेंट है तो इसमें इसको आप डिगिंग करें या इसकी डिगिंग करें, कास्ट दोनों की सेम होगी, यहाँ पे कास्ट दोनों की सेम होगी एक ही तरह की अगर इन्वायरमेंट में पड़े हुए कंडीशन में, लेकिन फ़ायदा किस में है, फ़ायदा इसमें है कि इसमें आपको सेम कास्ट में ज़्यादा एनर्जी मिल रही है, इसको सेम कास्ट में कम एनर्जी मिल रही है, तो इस तरह से डिफरेंट। फ्यूल एनर्जी विच फ्यूल कैन प्रोड्यूस एंड रिलीज, ये जस्ट एग्जांपल बताते हैं। फ्यूल एनर्जी अभी एग्जांपल दी है कि फ्यूल्स सेम काइंड ऑफ कोल है, कोल के डिफरेंट टाइप्स हैं डिफरेंट, लेकिन एवरी टाइप्स हैज़ डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी कंटेंट। Extraction energy required for 1 barrel petroleum was 1% of fuel energy before, now between 10% and 15% of fuel energy. Fuel ceases to be a primary energy resource, ठीक है, regardless of price when extraction energy approaches fuel energy. Extraction energies, this is an important, ये आपको अगर ये समझ जाएंगे तो आपको ऊपर वाली डायग्राम भी आपको समझ आ जाएगी। इसकी फॉर एग्जांपल क्या है, एग्जांपल ये कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑयल रिज़र्व पड़ा हुआ है, ठीक है, ये अर्थ है, यहाँ पे आप जो है ना वो ड्रिलिंग करते हैं, ड्रिलिंग की कास्ट जो आ रही है वो $100 आ रही है पर बैरल, आपस में पर बैरल आ रही है, ठीक है। अब ये ऑयल आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया, अब इसकी कास्ट क्या है, ये आपने ये किया है, तो ये पर बैरल इसकी कास्ट आ रही है $95, तो इसको निकालना चाहिए नहीं, या नहीं निकालना चाहिए, पर बैरल इसका मतलब है कि 100 माइनस $5 जो है आपको प्रॉफिट नहीं है, तो फिर ये चीज़ भी हमें देखनी होती है, ये अपनी एक इसकी साइंस है। इसका मतलब है कि हमें
फॉर एग्ज़ाम्पल जो ऑयल प्राइस जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल सऊदी अरब में जो ड्रिलिंग या डिगिंग के थ्रू जो जो कास्ट आती है, उसके बाद डिगिंग कास्ट, ड्रिलिंग कास्ट प्लस जो है फ्यूल कास्ट जो है वो जब करते हैं तो वो फ़र्ज़ करें वो 10 रुपीज़ आ रही है, दोनों की इतनी कम है। तो खाली यही चीज़ ड्रिलिंग कास्ट जो है वो पर ड्रिलिंग कास्ट इन कनाडा वो भी शायद जो है वो $15 हो। तो वाई शुड जो है वो कनाडा वाले भी अपने रिज़र्व को यूज़ करने के बजाय वो सऊदी अरब से ही देखेंगे कि उनको ट्रांसपोर्टेशन सस्ती पड़ती है। तो इस तरह के डिफरेंट सिनेरियोज बन सकते हैं। तो फॉर आगे चलते हैं, ये एक अलग पेट्रोलियम का एक ये अलग सब्जेक्ट है, हम इतनी इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, जस्ट वी विल डिस्कस सर्टन पॉइंट्स अगर किसी को समझ आते हैं, नहीं तो Q&A सेशन में हम फर्दर इसको डिस्कस करेंगे। लेट अस ट्रांसपोर्टेशन सिनेरियो क्या हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन और डिफरेंट 9 नॉन रिन्यूएबल में हमने डिस्कस कर रहे हैं, रिपीट कर रहा हूँ। कोल है, ऑयल एंड गैस। तो आपने देखा होगा कि ऑयल को हम टैंकर्स में भी कर रहे होते हैं, गैस के लिए आपने देखा होगा कि सड़कों पे LNG जो है वो टैंकर जा रहे होते हैं। तो इसका रेल है, ट्रांसपोर्ट आप कह सकते हैं, व्हीकल्स वगैरह, व्हीकल्स, सी शिपमेंट, एंड देन कम्स अप पाइपलाइंस। इन सब की फिर कास्ट देखते हैं कि क्या है। पाइपलाइन जिस तरह इसमें आपने देखा होगा तैपे का नाम सुना है, टर्किश, तुर्कमानिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, और ये बहुत डिस्कस था ये इंडिया की एक पाइपलाइन होगी, अभी तक को भी रियलाइजेशन उसकी नहीं हुई है, जस्ट एक आप समझ लें कि कंसेप्ट है, या ये कि एक पाइपलाइन होनी चाहिए, एग्रीमेंट था, MOU था, लेकिन कभी भी वो उस पर काम नहीं हुआ। इसी तरह से ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, IPI पाइपलाइन, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया ये था, लेकिन ये अमेरिका की सैंक्शन के बाद नहीं हो सका। इस तरह के डिफरेंट आपके ट्रांसपोर्टेशन सिनेरियो बनते हैं। इंक्रीज़ इन ट्रांसपोर्टेशन लिंक टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन जितनी सिंपल सी बात है कि आपको पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, तो ट्रांसपोर्टेशन भी ज़्यादा हो जाएगी। तो इससे ये दोनों रिलेट करते हैं। लिमिटेड है, निग्लिजिबल अल्टरनेटिव्स टू फॉसिल फ्यूल्स इन ट्रांसपोर्टेशन। फॉसिल फ्यूल्स को ट्रांसपोर्टेशन के जबकि मेथड हैं और क्या क्या हो सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। लिमिटेड है, जो आपका भी डिस्कस किया था कि रेल है, शिपमेंट है, पाइपलाइन है, लिमिटेड। देन कम्स द फ्यूल सेल एंड बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अ लॉन्ग वे गो, कि आपको फ्यूल सेल्स या बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, अभी इस पर टाइम लगेगा। अभी भी दुनिया में ना ज़्यादातर जो है वो ऑयल के ऊपर ही चल रहा है। अभी पाकिस्तान के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम इन इस्लामाबाद फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज स्टेशन जो है इस्लामाबाद में अप्रूवल हुआ है गवर्नमेंट ने। इसमें गवर्नमेंट के इरादा है कि इसी तरह 5-10 लाइसेंस दिया जाए और इलेक्ट्रिक चार्ज, और इसी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाएँ, तो इस तरह बैटरी चार्जेज। तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता यानी कि गवर्नमेंट की पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि क्या हो। Then come research ongoing but slow compared to rate of growth of demand. Conclusion: replacement of fossil fuels with renewable fuel in transportation is much more difficult. अभी फ़िलहाल जो है वो रिप्लेसमेंट जो है वो इसमें विद रिन्यूएबल एनर्जी से हम कह सकते हैं अल्टरनेट में वो डिफ़िकल्ट है। तो दिस इज़ द नेक्स्ट है स्ट्रिंजेंट इन्वायरमेंट पॉलिसीज़। इन्वायरमेंटल, हर कंट्री की अपनी एक इन्वायरमेंटल पॉलिसी होती है, देखें। इसी तरह वर्ल्ड में भी एक जो था वो इंटरनेशनल फ्रांस का अकॉर्ड जिसको कहते हैं क्लाइमेट चेंज अकॉर्ड था, जिसमें 2017 में ट्रम्प जो है ना पुल आउट कर गया था। उसकी डिफरेंट रीज़न हो सकती हैं, क्योंकि वो इसमें दुनिया कह रही थी कि कार्बन एमिशन को कम किया जाए और जो टेम्परेचर रेज हो रहा है दुनिया का वो उसको एक ख़ास लिमिट तक रखा जाए, और जो अमीर मुल्क हैं उनको जो है वो हम इमदाद दें गरीब मुल्कों को, ताकि वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर वो लगा सकें। इस तरह का एग्रीमेंट था वो, लेकिन इसे अमेरिका पुल आउट हो गया था कि हम इससे हमारी इकॉनमी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। इन्वायरमेंटल की जो पॉलिसी है जो दुनिया की, हम अपनी पॉलिसी बनाएंगे और ख़ुद देखेंगे। तो वो उससे पुल आउट कर गया था ट्रम्प, वो आपने। सो डिमांड इम्प्रूवमेंट ऑफ ऑयल प्रोडक्शन एफिशिएंसी, इसमें क्या डिमांड करता है इसके कि ऑयल प्रोडक्शन एफिशिएंसीज एफिशिएंटली हो, जिसमें रिस्ट्रिक्ट
अनसुपरवाइज्ड एक्सपेंशन, ठीक है, इस पे इन्वायरमेंट से क्या रिलेशन बनता है इसका? अनसुपरवाइज एक्सपेंशन, जो भी आपकी ऑयल एक्सप्लोरेशन हो, ठीक है, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ की जाए, वो सुपरवाइज़ किया जाए, कहाँ पे उन पर चेक रखा जाए कि कहाँ पे इमिशन ज़्यादा हो रही है, नहीं हो रही है, इन्वायरमेंटल पॉलिसियों को वो फुलफ़िल कर रहे हैं, नहीं कर रहे। तो इस तरह के ये डिमांड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ ऑयल प्रोडक्शन एफिशिएंसीज, इस तरह का इससे इसका लिंक बनता है। डिस्करेज थ्रोटल्स इन्वेस्टमेंट इन ऑयल प्रोडक्शन, डिस्करेजेस इन्वेस्टमेंट इन ऑयल प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर, कि ऑयल प्रोडक्शन जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्करेज किया जाए, तो ताकि लोग रिन्यूएबल एनर्जी साइड पे जाएं। इन्वेस्ट ओनली इंटरेस्टेड इन फैट प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है कि आप जो है वो इनपुट कितना कर रहे हैं, कि आपकी ग्रॉस इनकम कितनी है और एक्सपेंसिव कितने हैं, एक्सपेंसेस कितने हैं, कि व्हाट आर योर ग्रॉस इनकम कितनी है और एक्सपेंसेस कितने हैं, माइनस आप कह सकते हैं ये माइनस एक्सपेंसेस। तो इसमें आप कह सकते हैं फ़ैट जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा तो इतना ये फैटर हो जाएगा, फैट ये मोटे जिसे आप कहते हैं फैट की, इतना फैटर द, ठीक है, एक्सपेंसेस जितनी आपकी, यानी कि जितने एक्सपेंसिव इनकम है, एक्सपेंसेस कम है, तो ये चीज़ जो है वो बढ़ती जा रही है। तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि ज़्यादा मोर इनकम में लोग इंटरेस्टेड होते हैं इस केस में। डिमांड फॉर ऑयल कंटिन्यूज़ टू ग्रो, ठीक है, ये तो आप कह रहे हैं कि ये डिमांड तो बढ़ती रहेगी ऑयल की। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री मेजर कंज्यूमर्स ऑफ एनर्जी एंड वाटर रिसोर्सेज, ठीक, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री मेजर कंज्यूमर्स ऑफ एनर्जी, तो ये ठीक है। वाटर रिसोर्सेज में हाइडल आ सकता है, हाइडल भी ठीक है, ये एनर्जी के रिसोर्सेज हैं। प्रोडक्शन कंप्राइज ऑफ एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस, ठीक है, कंप्राइज ऑफ एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस। नेक्स्ट इसका है स्ट्रिंजेंट इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़, डिमांड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एक्सट्रैक्शन, ठीक है, रिफाइनिंग, वाटर डिस्पोजल सिस्टम टू रिमेन इन द बिजनेस। पॉलिसीज़ क्या हो सकती हैं कि एक्सटेंशन का आप किस तरह से की जाए, कुछ इन्वायरमेंट पे इफेक्ट तो नहीं है, रिफ़ाइन करेंगे तो रिफ़ाइनिंग में किस तरह से किया जाए, रिफ़ाइन के अंदर CO2 इमिशन, कार्बन CO2, CO, इसके बाद सल्फ़र मोनोऑक्साइड है, क्या SO2 गैस, डिफरेंट किस्म के और भी इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट हो सकते हैं। एक्सट्रैक्शन के भी तौर में भी आपने देखा होगा कि ऑयल स्पिल्स वगैरह आते हैं, ऑयल स्पिल्स हैं डिफरेंट किस्म के आपकी ऑयल स्पिल्स, तो डिफरेंट एक्सट्रैक्शन। जिससे आपको गैस का एग्जांपल बताया था कि हादसा हो गया था गैस में, अगर उसको एक्सट्रैक्ट करने के तरीके के हैं, उस इन्वायरमेंट पे अगर जो है बहुत से इस तरह के वाक़यात हुए हैं कि गैस से पूरे का पूरा जो इलाके में गैस फैल गई है, लोगों को मसले मसाइल में। वाटर डिस्पोजल सिस्टम आता है कोल के अंदर जब आप बॉयलर है, ठीक है, बॉयलर है या बॉयलर के ऊपर बॉयलर चल रहा होता है, ठीक है, या अगर आग जल रही है, ठीक है, तो बॉयलर है, तो यहाँ पे नीचे कोल आता है, कोल जलता है, कोल की जो रिमेन्स हैं उसको निकालने के तरीके हैं थ्रू फ्लशिंग वाटर के साथ, तो वो उसके अंदर डिफरेंट मटेरियल्स हैं जो उसको वाटर डिस्पोजेबल वाटर करते हैं, उसको किस तरीके से उसको रिमेन्स है कोल जलने के बाद उसको या राख कह सकते हैं, राख उसका किस तरह से रीयूज़ किया जाए, डिफरेंट फिर सब बॉयलर के अंदर जो है सिस्टम है, तो डिफरेंट आपके प्रोसेसेस हैं, सब के सब उनका कोई ना कोई इन्वायरमेंटल इफेक्ट पड़ता है, उनको मॉनिटर किया जाए। मोर इन्वेस्टमेंट ऑन प्रोडक्शन and environmental control infrastructure to meet these policies, less profit for investors, ताकि आप रिन्यूएबल वाली साइड पे जाएं। ऑयल एंड गैस कंपनीज मस्ट प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी टू देयर इन्वायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम, जस्ट एक पॉलिसी होती है, इम्प्लीमेंट तो कोई भी नहीं करता। अमेरिका जैसा मुल्क भी ये पुल आउट कर गया कि हमें अपनी पॉलिसी बनानी है, हम क्योंकि अगर हम इस पे इमिशन कंट्रोल करेंगे तो हमारा जो है वो जॉब्स कम हो जाएंगी और तकरीबन वो कह रहा था कि 2 to 3% हमारी जो है ना वो ग्रोथ रेट कम होगा। तो अपनी पॉलिसीज़ उनकी अच्छी पॉलिसी भी होती है कि साथ यानी कि CO2 भी इमिट अगर कर रहे हैं, CO2 अगर इमिट कर रहे हैं तो दूसरी साइड पे कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी हो सकती है जो इसको इमिशन को कंट्रोल करे। बहरहाल अमेरिका की अपनी मर्ज़ी, जिस तरह वो करता है वो करे। वो बहुत से मुल्क जो है ना वो इस एग्रीमेंट पे सिग्नेटरी नहीं है या पुल आउट कर गए थे अमेरिका के बाद कि नहीं इससे हमारे इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप कहेंगे कि आप गोल से एनर्जी ना बनाएं या इसे कंट्रोल करें तो उससे इफेक्ट पड़ेगा। कम्पिटिटिव मार्केट, जितनी कंपटीशन ज़्यादा होगी इतनी प्राइस कम होगी, सिंपल है, ठीक है, ये तो
मेजर चैलेंजेस यानी कि इसमें मार्केट में क्या है, दुनिया में दो है, ओपेक है और रशिया है। रशिया मेरा ख्याल ओपेक का मेंबर है या नहीं है ये मुझे नहीं पता, आप चेक कर लें। ऑयल प्रोड्यूसिंग ओपेक कहते हैं कंट्रीज़ हैं, इसमें इनका दूसरा रशिया है। इनका आपस में क्या होता है, इनकी कंपटीशन है, यानी ओपेक एक ही प्राइस रखेंगे ये क्या है, ये बहरहाल ये भी पॉलिटिकल एक सिनेरियो बनता है। और पुश ओपेक को तो कंट्रोल मेरा ख्याल अमेरिका ही करता होगा या वेस्ट करता होगा, अमेरिका या तो ये पूरा एक सिस्टम बनता है। सॉरी सॉरी सॉरी। नेक्स्ट है आपका सोल्यूशन मैक्सिमाइज प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंड एक्सट्रैक्शन एंड रिफाइनिंग, ऑप्टिमाइज ऑयल प्रोडक्शन सिस्टम। ऑयल प्रोडक्शन का डिफरेंट सिस्टम हो गया दुनिया अब जो है ना, जिस तरह बाकी टेक्नोलॉजीज़ ने विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने देखा होगा पिछले 10-15 सालों में आपकी आईटी टेक्नोलॉजी ने काफ़ी इंप्रूवमेंट आई है। इसी तरह से आपके मोबाइल फ़ोन मेमोरी देख लें, पहले कितनी थी अब किस तरह थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑयल प्रोडक्शन सिस्टम या ड्रिलिंग के अंदर भी डिफरेंट, क्योंकि हमारा तो ये फील्ड है नहीं, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग अपना है कि उसके अंदर जो सिस्टम है उनको किस तरह से एफिशिएंट बना के जो है ना वो और जो है प्राइस कम की जा सकती है, तो डिफरेंट ये। नेक्स्ट आप क्या क्या सप्लाई रिलायबिलिटी। अब इस केस में देखेंगे सिंपल एग्जांपल एक ही से आपको समझ आ जाएगी। सी पैक्स होते ये चाइना है, ठीक है, दिस इज़ चाइना, दिस इज़ आप कह सकते हैं कि ये अगर ये इंडिया और ये बांग्लादेश, यहाँ पे ये इस तरह का नक्शा बनता है अगर, ठीक है, यहाँ पे जो बहुत ही यहाँ पे ये मलेशिया या इंडोनेशिया के जज़ायर हैं, और ये अगर पाकिस्तान है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है ना ईरान या इस तरह ये सऊदी अरब है, तो यहाँ पे अगर ऑयल है तो अब चाइना क्या करना चाहता है कि चाइना जो है ना वो पाकिस्तान के थ्रू रिलायबिलिटी आती है कि पाकिस्तान के थ्रू जो है ना यहाँ पे ज़्यादा ऑयल मिडिल ईस्ट में एक्सेप्ट करे, क्योंकि इसको अदरवाइज़ को शिप्स के थ्रू जाना पड़ता है लाम रोड, और यहाँ पे इसका बॉटल लग बनती है, फिर जाके आपको काफ़ी दूर यहाँ पे जाना है, ठीक है। तो फर्स्ट तो ये है कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी तो यही है, लेकिन सेकंड प्रायोरिटी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई वार हो जाए या कुछ मसला होता है, इसकी सप्लाई रिलायबल नहीं है, तो सप्लाई रिलायबिलिटी के लिए क्या है कि यहाँ पाकिस्तान के थ्रू जो सी पैक है जिसके सारा है वो एक उनके लिए बड़ा मसला है चाइना के लिए कि एक उसकी सप्लाई रिलायबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि चाइना जो है वो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री नहीं है, वहाँ पे ज़्यादा ऑयल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है और सारे की सारी सप्लाई उसकी मिडिल ईस्ट से होती है। तो ये एक है दैट टू रिमेन कम्पिटिटिव यू नीड टू इंश्योर रिलायबल सप्लाई। पाकिस्तान के अंदर भी फॉर एग्जांपल एक और डिपेंड करता है रिलायबल, आप एग्जांपल दें इस कोर्स से हट के कि एक बाज़ दफ़ा पाकिस्तान के अंदर प्राइसेस क्यों बढ़ी हैं कि आपके पास जो स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, कि आप फर्ज आपके पास सप्लाई आपकी आ रही है, अब सप्लाई आप कर रहे हैं, अगर सस्ता हो गया तो आपके पास जो है ना ऑलरेडी जो है ना सारा कुछ ये फिल है, तो आप कहाँ पे इसको डालेंगे, आपके पास नो स्टोरेज। पाकिस्तान के केस में एक ये हुआ था कि स्टोरेज कैपेसिटी कम थी, क्योंकि कोई पॉलिसी गवर्नमेंट की ऐसी थी कि जो कंपनीज़ हैं तो वो अपने उन्होंने स्टोरेज भी मेंटेन नहीं किया था, क्योंकि उनकी स्टोरेज करने की कास्ट ज़्यादा थी, और सप्लाई फिर जब दुनिया में सस्ता हुआ तो उन्होंने नहीं किया, तो क्योंकि उनके अगर वो स्टोरेज नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट की पॉलिसी उनको फिर फ़ाइन करना पड़ता था। अब फ़ाइन इतना कम था कि अब वो जो है ना वो फ़ाइन उनको उससे बेहतर था कि फ़ाइन दें, परचेज़ करने के बजाय फ़ाइन ज़्यादा सस्ता पड़ता, वो गवर्नमेंट को फ़ाइन कर। अब गवर्नमेंट ने किया कि वो कल री एवेलुएट किया कि अब इस तरह अगर करेंगे जो प्राइवेट कंपनी पीएसओ को छोड़ के जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो अगर स्टोरेज मेंटेन नहीं करेंगी तो उनको फ़ाइन देना पड़ेगा, और फ़ाइन अब री एवेलुएट किया कि फ़ाइन जो है ना जितना उनको वो फ़ायदा होता था स्टोरेज ना करने का, ठीक है, उससे डबल ट्रिपल फ़ाइन देना पड़ेगा। पहले फॉर एग्जांपल अगर जो है ना वो फ़ाइन देते थे, उनको फ़ायदा हो रहा है $15 का, वो फ़ाइन जो है वो $10 का दे रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, हम जो है ना इसकी प्राइस बढ़ा के $200 करेंगे अगर ये सप्लाई स्टोरेज मेंटेन नहीं करेंगे। हर एक कंपनी को गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि इतनी स्टोरेज मेंटेन करते हैं। फिर होता यह है कि स्टोरेज उनके पास होती नहीं है, ऑयल होता नहीं है, ठीक है, तो फिर मुल्क के अंदर क्या होता है कि सप्लाई डेलिबरेटली ये सप्लाई कम कर देते हैं, और ऑयल की प्राइसेस तो आज गवर्नमेंट ने रखी होती है, सप्लाई जो है वो आगे आवाम को नहीं होती, लाइनों में लगना पड़ता है। तो ये एक इट इज़ आल्सो यू कैन से दैट अ बिग गेम। इनको भी आप समझा करेंगे इस मुल्क में रहते हैं कि इसमें, क्योंकि आप साथ साथ कि इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्या क्या इसके चीज़ इसमें आगे फ़ायदा किसको होता है। तो
अब फॉर द फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ने ये पूरी इस पर जो तहकीक हुई है पिछले अरसे, कमीशन बैठा है तो उन्होंने पूरे एवेलुएट किया है, एनालाइज़ किया है कि ये क्या है, तो इसलिए ये पाकिस्तान है कि इसमें सप्लाई रिलायबिलिटी, फिर इसके लिए कानून साजी होगी, कोई कानून एक्ट होगा कि क्या क्या करना है। तो अब वो उसके बाद जो भी इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी के बाद जो वीक पॉइंट नज़र आए, उन वीक पॉइंट को जिन कंपनी ने एक्सप्लाइट किया है, तो अब नया कानून बना है या नया वो एक्ट बनाया गया है कि आप नहीं, अब इस तरह करना पड़ेगा ताकि सप्लाई रिलायबिलिटी को मेंटेन किया जा सके। तो विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान आपको बता रहा था। नेक्स्ट है सोल्यूशन टू एक्सप्लोरिंग एक्सट्रैक्टिंग रिफाइनिंग ऑन न्यूर साइट्स। ठीक है, जितनी आपकी साइट ज़्यादा होंगी इतनी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी, लोकेशन आपकी ज़्यादा जगहों पे लोकेशन है। ठीक है, जितनी लोकेशन ज़्यादा होंगी इतनी रिलायबिलिटी है। कॉस्टली बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एसोसिएटेड कास्ट, न्यूर प्लेसेस टिपिकली रिमोट विद द हार्श वेदर कंडीशंस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि क्या है। ठीक, नेक्स्ट कम द रिलायबल सप्लाई रिक्वायर्स मल्टीपल एडिक्वेटली डिस्पर्स जनरेशन साइट्स, जस्ट डिस्कस कर दिया ये ऑलरेडी। एग्जाम प्रेफरेबल दैट ऑयल कंपनीज राइट्स ड्रिल साइट्स इन अमेरिका इन नॉर्थ, यानी कि अमेरिका के लिहाज से अगर देखा गया है ठीक है, तो वो अमेरिका यानी कि अपने मुल्क के अंदर वहाँ पे ड्रिलिंग साइड उनकी लेस डिपेंडेंस ऑन मिडिल ईस्ट हो। जिस तरह पाकिस्तान का केस है, पाकिस्तान में तो चलो ठीक है कि रिलायबल है कि आप पाकिस्तान में तो कम होता है, पाकिस्तान के पड़ोस में मिडिल ईस्ट है। ठीक है, मिडिल ईस्ट में आपका KSA है, UAE है, ऑयल प्रोड्यूसिंग है, इराक़ है। ठीक है, अब पाकिस्तान मेरा ख्याल है कि इनमें से सऊदी अरब से आयल लेता है या फिर UAE से आयल लेता है। इराक़ के साथ अब सोचना पड़ेगा पाकिस्तान को कि हालात तो ठीक नहीं थे, या ईरान है, ईरान पे पाबंदियाँ लगी हुई हैं, ईरान बिल्कुल पड़ोसी है, ईरान के अंदर भी बहुत ज़्यादा आयल रिजर्व है। तो पाकिस्तान इस लिहाज से यानी कि वो रिलायबिलिटी है, अपने स्टोरेज के लिहाज से पाकिस्तान में मसला है, वरना ये अपने पड़ोस में ही आयल है, आप ईरान से मंगा सकते हैं एग्रीमेंट करके। जब ईरान का मसला हल हो जाएगा पाबंदी हट जाएंगी। ठीक है, ईरान से या इनसे आपकी दोनों आपके। और तीसरी कंडीशन ये है कि अपनी आपके पास एक्सप्लोरेशन हो कि अपना आयल हो। तो नेक्स्ट टॉपिक है या इसी लेक्चर का, तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द लेक्चर नंबर 7 पार्ट 2, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ फॉसिल फ्यूल। अभी हमने इश्यूज़ देखे थे कि व्हाट आर द इश्यूज़, अब हम सेकंड देखेंगे। सेकंड ऑब्जेक्टिव था हमारा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ फॉसिल फ्यूल। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमने डिस्कस कर लिया है, इश्यूज एंड चैलेंजेस का, कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स के उसके सप्लाई डिमांड के जो सप्लाई एंड डिमांड अदर जो रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनके ऊपर, इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट लेक्चर।